Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. If you are new to my channel, I request you to kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. And if you are already a subscriber and watching my videos, I really thanks and appreciate that my videos are really helping you and you are watching my videos. Please subscribe and don't forget to press the bell icon. So, if you are following my videos or the tutorials for the Elasticsearch, we were creating the Spring Boot project for the Elasticsearch in which we were saving the poetries and getting the poetries and deleting it, right? So we were doing the CRUD operation on the basis of the poetries that users submit. So in my last video, I have cleared you that till now we have completed two API implementation. One is add poetry implementation, and the second one is the get all poetry implementation, right? So now in this video, I will be going to cover the get API with the path variable of the ID, means to get the poetry detail on the basis of that particular ID. So let's get started. So for that, go first of all go to your REST controller. There will be the method called get with the parameter argument, that is ID. So for in that, if you are seeing this, we are calling the poetry service.get but with ID method. So let's open the implementation for this service class. Let's wait for it to be open. So now this is our method, service implementation method, where we have not written anything yet. So you know that we are using the Elasticsearch repository. Poetry repository is the repository that we are talking about. So we will just use that repository and fire the query in the Elasticsearch using the for getting the poetry document for that particular poetry ID, right? So let use the poetry object, poetry, and poetry repository dot get sorry, find find by ID, and the ID is that we are passing, right? So find by ID is always the optional, so we have to use the optional of poetry. So this object name will be poetry optional, right? And what we will do, if poetry optional dot is present, right? अगर पोइट्री ऑप्शनल ऑब्जेक्ट के अंदर पोइट्री का डेटा है, यानी कि पोइट्री डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, तब ये बेसिकली क्या करेगा कि पोइट्री डीटीओ के अंदर डेटा को मैप करेगा। तो हम क्या करेंगे, पोइट्री डीटीओ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और न्यू पोइट्री डीटीओ में आईडी, टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोइट्री का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो पोइट्री पोइट्री ऑब्जेक्ट, और ये लेना पड़ेगा पोइट्री ऑप्शनल से डॉट गेट। तो पोइट्री ऑप्शनल डॉट गेट करेंगे तो हमें पोइट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब उसी पोइट्री डॉक्यूमेंट से डेटा निकाल के, जैसे आईडी है, आईडी का निकाला, पोइट्री के अंदर टाइटल का निकाल दिया, पोइट्री के अंदर डिस्क्रिप्शन का निकाल दिया, पोइट्री के अंदर तुम्हारा टाइप का निकाल दिया, और उसी में आपका निकाल दिया इमेज का, और उसी में निकाल दिया आपका क्रिएशन टाइम स्टैम्प का, डेट फॉर टाइम फॉर मैटर dot ISO date, sorry, the basic ISO date, or we can use this one. Yes, so ISO date we can use. We were using in the earlier example also. So ISO date, we are just formatting that
creation time, right? So that we have created the poetry DTO object. Now what we have to do is we just simply return the object of API response DTO, right? So for that API response DTO, in that the object will be passed the poetry DTO object, and we will the message will be poetry. 1 second, guys. Poetry details found successfully. Okay, and the status will be okay, and the HTTP status is okay, and the API response status will be true. That API is success or not, right? And after that, the current timestamp we will give when we are creating that response, right? So this will be the case when the poetry optional is present, means the poetry object is present in the optional. So means if poetry object is not null, then we have to do this. If it is null, right? If it is null, what it will do? It will throw the new exception, and we will create the exception over here in the exception package, and that will be the class poetry not found exception, right? कि इन केस अपने को पोइट्री नहीं मिली, तब अपने को एक एक्सेप्शन देना है। रन टाइम एक्सेप्शन हम लोग इसके अंदर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम @getter डाल देंगे, एक वर्जन आईडी इसकी हो गई, और इसी के अंदर हम सोर्स में आपका ये आ गया यूजिंग फ्रॉम जी सुपर क्लास। तो सुपर क्लास से हम अपना ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, मैसेज वाला, ठीक है ना। तो मैसेज वाला ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो ये सुपर मैसेज कॉल कर देगा। अब उससे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग मैसेज, और मैसेज की डालनी है, याद रखना। अभी चलो मैसेज डाल देता हूँ मैं सिंपल, ताकि मैं आपको बाद में जब समझाऊंगा चीज़ों के बारे में कि हम i18 कैसे यूज़ करते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टेंट्स वगैरह में कैसे डालना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग हार्ड कोड कर दे रहे हैं यहाँ पे, और हार्ड कोड मैंने किया मैसेज पोएट्री नॉट फाउंड, ठीक है। तो पोएट्री नॉट फाउंड सीधा अपना यहाँ पर के आ गया, ठीक है। अभी जो है इसको मैसेज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये प्रॉपर हो गया। अभी यहाँ पर इसको मैसेज वाला भी नहीं हम लोग बनाएंगे, सो इसको मैसेज हम यहाँ से पास करेंगे, क्योंकि हमें मैसेज वहाँ से तो देना नहीं, हमें हार्ड कोड कर दिया तो कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, और उसके बाद आपका यहाँ पे हम कहेंगे पोएट्री नॉट 1 सेकेंड, पोएट्री नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम थ्रो कर देंगे। तो वो ये एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा जिसमें मैसेज रहेगा अपना पोएट्री नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसको एक्सेप्शन को यहाँ तो डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर वो बनाना होता है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। मैन 1 second, guys, let me rename that class global exception handler, and in this we will be extending the response entity exception handler, okay. And the after that this will be marked as rest controller advice. After that, what we will do, we will just simply write the method public response entity of type API response GTO of type void, and handle poetry
not found exception. Okay, and we will pass that poetry not found exception in the argument. After that, it will be marked as exception handler, and the value of the class will be poetry not found. Poetry not found exception dot class, right? After that, what we will do, we will return simply the new API response entity with particular API response DTO object, right? ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं गाइस? क्योंकि अगर हम कंट्रोलर में देखेंगे तो कंट्रोलर के अंदर जो भी हमारा रिस्पॉन्स हम लोग रिटर्न करते थे वो सेम इसी फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे थे। तो सिंपली जब भी कोई एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में इस तरीके से मेथड बना के इस तरीके से एनोटेशन मार्क करके हम उस हैंडल एक्सेप्शन जो थ्रो की है उसे हैंडल करके जिस भी वे में हम रिस्पॉन्स पास ऑन करना चाहते हैं यूज़र को, उस फॉर्मेट के अंदर हम पास ऑन कर सकते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर जब मैंने इस तरीके का फॉर्मेट रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एज इट इज़ मैं अपना पोएट्री नॉट फाउंड एक्सेप्शन जब आती है, तब मैं सेम रिस्पॉन्स जो है, जैसे कंट्रोलर में पास करता था नॉर्मल एपीआई रिस्पॉन्स के लिए, सेम मैं एक्सेप्शन रिस्पॉन्स को भी उसी तरीके से हैंडल करूँ। तो इसीलिए मैंने इस अप्रोच को यूज़ किया। तो अभी इसके अंदर हमें कैसे करना है, एक एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे void के नाम से, उसके void के टाइप से, और एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ हमने क्लास बनाया, उसके अंदर void तो रहेगा नल। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज अपना वो रहेगा जो हमारे को एक्सेप्शन से मिलेगा। तो पोएट्री नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, स्टेटस क्या देना है। अभी देखो ये नॉट फाउंड स्टेटस होगा क्योंकि हमको मिला नहीं है ऑब्जेक्ट। तो नॉट फाउंड का ये है। तो एच टी पी स्टेटस नॉट फाउंड आ गया, और नॉट फाउंड का ये वैल्यू पार्ट लेगा क्योंकि इंटीजर है, और सक्सेस वाला पार्ट में फॉल्स आएगा क्योंकि ये एपीआई सक्सेस नहीं हुआ, तो ये फॉल्स आएगा। और लास्ट पैरामीटर है अपना सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, यानी कि जब भी वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा होगा ना, उसी समय वो टाइम, उसी समय का टाइम जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो ये एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ बन गया। अब अपने को क्या करना है, सिंपल रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। और उसके अंदर दो चीज़ें पास करनी है, वही सिंपल, जो बॉडी और उसका स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ कोड को। तो एपीआई रिस्पॉन्स जीटी को ये यहाँ से हटा दिया, और एपीआई रिस्पॉन्स जीटी हमारी बॉडी है, स्टेटस हमारा रहेगा एच टी पी स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये गाइस सिंपली अपना हो गया। तो हमने क्या किया बेसिकली इस एपीआई के अंदर, कि जब हमने कहा कि भाई ये सर्विस में जाएगा आईएमपीएल में, तो ये डेटाबेस पे हिट करेगा इलास्टिक सर्च में। भाई डेटाबेस में जब हिट किया उस पर्टिकुलर आईडी पे, हो सकता है वो आईडी गलत हो, ठीक है ना, तो डेटा नहीं मिलेगा। तो उस केस में एक्सेप्शन आ सकता है। तो उसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया कि फाइंड बाय आईडी का उसका रिटर्न टाइप ऑप्शनल में आएगा। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको मैप कर दे पोएट्री डीटीओ में, ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो पोएट्री नोट फाउंड का एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो जब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है तो वो जाता है यहाँ पे वेस्ट कंट्रोलर एडवाइस वाली क्लास में, उसके अंदर देखता है कि इसका कोई एक्सेप्शन हैंडलर बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है तो वो उसी तरीके से उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। अदरवाइज जैसे नॉर्मली आप एक्सेप्शन जनरली यूज केस देखते हो कि थ्रो करता है स्ट्रिंग, वो उस तरीके से अपना एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई हो गाइज। हमने इस वीडियो के अंदर गेट एपीआई बनाई है विद पाथ वेरिएबल पैरामीटर, जो कि पोएट्री गेट करेगा पर्टिकुलर आईडी के ऊपर। So I think so this video is enough for now. Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bye for now.
Take care.